بہت سارے لوگ استغفار کی تسبیح غلط پڑھتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح صحیح پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے تمام مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں آپ کو استغفار کی تسبیح صحیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ بہت سارے میرے بہن بھائی استغفار کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، اگر کسی نے اپنے رزق کو بڑھانا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور فراوانی آئے، تو استغفار کو پکڑ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کوئی ذکر پوچھتے تھے تو آپ یا تو درود ابراہیمی بتاتے تھے یا پھر استغفار بتاتے تھے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ، بے انتہا کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے مشکل سے مشکل کام میں بھی کوئی نہ کوئی آسانی والا راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں خود بھی پرسنلی طور پر اپنی لائف میں بہت سارے معجزات دیکھ چکی ہوں۔ اللہ والو، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بہت زیادہ تنگیاں آ جاتی ہیں، آسانی کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ اکرام جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آپ کی سب سے فیورٹ آیت کون سی ہے، آپ کی سب سے فیورٹ آیت کون سی ہے؟ سورہ زمر میں ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّه۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس پر۔ اسرفوا یعنی اسراف کر چکے ہیں، زیادتی کر دی ہے انہوں نے اپنے نفس پر۔ کیا انہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں؟ ان اللہ یغفر اللہ جمیعا، بے شک اللہ کی رحمت تمام گناہ معاف کر دینے والی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ایک دعا ہے، لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری دعا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، جب ایک گناہ گار شخص اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کا اونٹ گم ہو گیا ہو اور وہ اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہو، اس اونٹ پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، اس اونٹ پر اس کا پانی بھی تھا، کھانے کا سامان بھی تھا، اور باقی دیگر اشیاء بھی اس کی اونٹ پر لدی ہوئی تھی، اور وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ شدت غم سے نڈھال اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اچانک سے وہ اونٹ اسے سامنے سے چلتا ہوا آتا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کہ خوشی میں یہ الفاظ اس کے منہ سے غلط ملط نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس لیول کی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے تو ہمیں اس قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب پکارتا ہے تو شیطان اتنے وسوسے
हमारे दिलों में डाल देता है कि तू तो इतना गुनाहगार है, तू इस काबिल ही नहीं है कि तेरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचे, या फिर वो सुने और तुझे आगे से रिप्लाई करें, तुझे माफ़ करें। अल्लाह वालो, हदीस तो बिल्कुल इसके बरअक्स कह रही है। हदीस तो कह रही है कि जब गुनहगार बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श पर भी लिखवाया है कि मेरी जो नरमी है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो रहमत है, वो मेरे गुस्से और जलाल पर हावी है, मेरे गज़ब पर हावी है। और ऐसा ही है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे गुनाहों की फ़ौरन पकड़ करना शुरू कर दे तो शायद हम में से कोई भी ज़िंदा ना बचे, तो शायद हम में से कोई भी इस ज़मीन पर चल ना सके। तो खुद सोचें कि अगर अल्लाह हमें इतने मौके देता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि खालिद बिन वलीद को मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक टाइम पर, वो दुश्मन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगले ही टाइम पर वो ऐसे कमांडर बने कि सैफुल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि पहले टाइम पर गुनाह कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उन पर तलवार निकाल रहे हैं। उनसे बड़ा गुनाह और क्या है? इस गुनाह से बड़ा और गुनाह क्या हो सकता है? बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इंसान खुद अपने ऊपर दरवाजे बंद करवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी दरवाजे बंद नहीं करता। आखिर में एक बात और करूंगी तौबा के बारे में, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तौबा एक बेहतरीन अमल है, एक बहुत बड़ा अमल है। ये हमारे बाप दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। सुफियान इब्ने अयूना रहमतुल्लाह जो भी गुनाह करता है, फरमाते हैं जो भी गुनाह करता है ख्वाहिश की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद होनी चाहिए कि उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाहिश की वजह से, अल्लाह ने उनको मना किया था कि उस दरख्त से फल नहीं खाना, नफ्स पर कंट्रोल नहीं हुआ, ख्वाहिश की वजह से वो फल खा लिया और गुनाह कर बैठे। तो सुफियान इब्ने अयूना ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर गुनाह करता है उसकी माफ़ी है, लेकिन अगर कोई शख्स मुतकब्बिर होकर, जैसे फ़िरौन था, अना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर तो एक गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है और आगे से ऐलान कर रहा है कि मैं रब हूँ, मैं ज़िंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ, ये वाला जो तकब्बुर है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी गुनाह किया, लेकिन वो गुनाह ख्वाहिश की वजह से था, फिसल गए थे। लेकिन इब्लीस का जो गुनाह था वो तकब्बुर की वजह से था। अगर आप किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो पहली बात तो उसको जज ना करें, क्योंकि वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है, वो कौन सा तकब्बुर में कर रहा है। एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नजात का कोई रास्ता बताएं जिससे निजात हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रब्बहु मिन ज़िक्रिल्लाह, अपने ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो, इसी में निजात है। जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, रिस्क में फरावानी पैदा होना शुरू हो जाएगी, घरेलू लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर औलाद नाफरमान है तो वो फर्मा बरदार हो जाएगी। अल्लाह वालों, बच्चियों के अल्लाह नेक नसीब करेगा। खुशखबरी ये है उस शख्स के लिए जिसके हाथ में क़यामत वाले दिन आमाल नामा आया और उसने आमाल नामे में कसरत से इस्तग़फ़ार को देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, ये बड़ा एक मशहूर वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इमाम सफ़र कर रहे थे, रास्ते में रात हो गई तो मस्जिद में रुकने के लिए इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ रात नहीं रुक सकते। तो एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा था, उसने कहा कि क्यों बुज़ुर्गों को तंग कर रहे हो। कहने लगे, बाबा जी आप चलें मेरे साथ, मेरे घर पर चलें, आप वहाँ पर रात रुकें। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो घर ले गया तो वो जो भी काम करता वो शख्स इस्तग़फ़ार पढ़ता, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ता। जब आटा गूंद रहा था तो इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह
रोटी बना रहा था तो इस्तगफार पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। घर का कोई भी काम करता तो उसकी ज़ुबान पे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी रहता। अब इमाम बिन हम्बल ये सब देख रहे थे, उस शख्स से पूछने लगे, इस जिक्र से तुम्हें कभी कोई फैज़ हासिल हुआ है, कभी कुछ मिला है, कोई फ़ायदा मिला है? तो वो शख्स कहने लगा कि मैं पहले बहुत गरीब था। आज आपने पूछ लिया है तो आपको बताता हूँ कि मैं पहले बहुत गरीब था, फ़कीर था। जब से ये ज़िक्र करना शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी रहमत की है, इतना मालो दौलत अता किया है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। मेरी हर दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया है। मैं जो भी दुआ मांगता हूँ मेरा रब उसे कबूल फरमाता है। बस एक ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हुई अभी तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे कि वो कौन सी दुआ है जो पूरी नहीं हुई? तो वो शख्स कहने लगा कि सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का बड़ा शौक़ है मुझे, बस ये दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे, वक़द जुरिरतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट कर लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इस्तगफार की ताकत है और फ़ायदे हैं। कसरत के साथ इस्तगफार किया करें अल्लाह वालों, जितना हो सकता है इस्तगफार पढ़ा करो। इस्तगफार को आप अस्तगफिरुल्लाह 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 की नियत से भी पढ़ सकते हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी आप किसी भी तरीके से इस्तगफार की तस्बीह कर सकते हैं अल्लाह वालों। ये बड़ी ही कीमती तस्बीह है, इसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब कोई बंदा अपने रब से माफ़ी मांगता है, इस्तगफार करता है, तो मेरा रब बेइंतहा खुश होता है। पहले भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि एक शख्स का ऊँट गुम गया, जितनी उसको उसके मिलने की खुशी है उतनी ही रब को अपने बंदे की माफ़ी मांगने की खुशी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ा करें और माफ़ी अपने गुनाहों की मांगा करें, फिर देखें रब की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं।